آہستہ بولو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ حسن بن صباح کے آدمی ہر جگہ ہیں۔ تصور کیجئے ایک ایسے شخص کا جو اپنے پیروکاروں سے کہے کہ خنجر اپنے سینے میں اتار لو، اور وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایسا کر گزرے۔ کہتے ہیں وہ صرف حکم دیتا ہے اور لوگ خود جان دے دیتے ہیں۔ سوچیں ایک ایسے انسان کے بارے میں جو اپنے بیٹوں کو بھی سزائے موت دے دے اور آنکھ بھی نہ جھپکے۔ ایک ایسا شخص جس کا نام سن کر بادشاہوں کے ہوش اڑ جاتے تھے، جس کے اشارے پر لوگ اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے، اور جس نے ایک چھوٹے سے قلعے سے پوری دنیا کو دہشت میں مبتلا کر دیا۔ کیا تم نے سنا؟ کل رات قلعے سے ایک نوجوان ہنستے ہوئے کود گیا۔ ہنستا ہوا؟ پھر سچ ہے، حسن بن صباح نے ان کے دماغوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ ہے حسن بن صباح کی حیرت انگیز اور خوفناک داستان، جو تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں سے ایک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دانیال وائس، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح ایک عام آدمی دنیا کا سب سے خطرناک انسان بن گیا، کیسے اس نے قلعہ الموت کو اپنا مرکز بنایا، اور کیوں آج بھی اس کا نام خوف اور دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ حسن بن صباح کی پیدائش 10ویں صدی کے وسط میں تقریباً 1050 کے آس پاس ایران کے شہر قم میں ایک عرب نژاد شیعہ خاندان میں ہوئی۔ اس کا پورا نام حسن علی بن محمد بن جعفر بن حسین بن صباح بیان کیا جاتا ہے۔ بچپن ہی میں اس کے والد قم چھوڑ کر رے کا رخ کر گئے، جو اس دور میں علم، فکر اور تہذیب کا ایک نمایاں مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اسی شہر میں کم سن حسن نے نہایت کم عمری میں علم حاصل کرنا شروع کیا، اور بہت جلد اپنے غیر معمولی ذہن کا لوہا منوا لیا۔ خود حسن بن صباح نے اپنی خود نوشت میں، جس کے چند حصے آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں، لکھا کہ 7 برس کی عمر سے ہی مجھے علم کے مطالعے سے گہری رغبت تھی، اور میں دل ہی دل میں ایک بڑا مذہبی پیشوا بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ 17 سال کی عمر تک میں فقہ کے بنیادی اور اہم اصولوں میں مہارت حاصل کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ریاضی، فلسفہ، ہندسہ، منطق اور دیگر عقلی علوم میں بھی خاص دسترس حاصل کر لی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حسن بن صباح ایک غیر معمولی طور پر ذہین انسان تھا، اور اگر حالات مختلف ہوتے تو وہ ایک عظیم عالم یا مفکر کے طور پر پہچانا جا سکتا تھا۔ مگر اس کی زندگی کا رخ اس وقت بدل گیا جب اس کا سامنا اسماعیلی مبلغین سے ہوا، جنہوں نے اس کے تیز ذہن اور جستجو کرنے والی سوچ کو ایک بالکل نئی سمت دے دی۔ یہی ملاقات حسن کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی، جس کے اثرات صرف اس کی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ آنے والی صدیوں کی تاریخ پر بھی گہرے نقوش چھوڑ گئے۔ یہاں ایک دلچسپ مگر متنازع بات کا ذکر ضروری ہے کہ عام طور پر لوگ مشہور سلجوقی وزیر نظام الملک کو حسن بن صباح کا ہمدرس اور دوست قرار دیتے ہیں، اور یہ قصہ بھی زبان زد عام ہے کہ عمر خیام، نظام الملک اور حسن بن صباح تینوں ایک ساتھ پڑھتے تھے، اور انہوں نے آپس میں یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی اقتدار یا بڑے منصب تک پہنچے گا وہ باقی 2 کا سہارا بنے گا۔ یہ کہانی سننے میں تو نہایت دلکش ہے، مگر تاریخی شواہد اس کی تائید نہیں کرتے، کیونکہ نظام الملک کی پیدائش 1018 میں ہوئی تھی، جبکہ حسن بن صباح کی ولادت تقریباً 1050 کے قریب مانی جاتی ہے، یعنی نظام الملک عمر میں حسن سے لگ بھگ 32 سال بڑے تھے۔ مزید یہ کہ 1067 میں جب حسن کی عمر محض 9 برس تھی، نظام الملک پہلے ہی سلجوق سلطنت میں ایک بااثر گورنر کے منصب پر فائز ہو چکے تھے۔ اس لیے یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ دونوں ہم عمر دوست ہوں یا ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہے ہوں۔ بہرحال تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسن بن صباح 17 برس کی عمر تک مکمل طور پر اسماعیلی عقائد اختیار کر چکا تھا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ ممکن ہے وہ ابتدا ہی سے اسماعیلی ہو، مگر ایک عرصے تک خود کو سنی ظاہر کرتا رہا۔ جب اس نے اپنے نظریات کو پھیلانے کا پختہ ارادہ کر لیا تو اس نے مختلف علاقوں کی طرف سفر شروع کیا، اور سب سے پہلے اس کی نگاہ مصر کے شہر قاہرہ پر جا ٹھہری، جو اس زمانے میں اسماعیلی خلافت اور فکر کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ قاہرہ پہنچنے سے پہلے ہی حسن بن صباح کے چرچے وہاں کی فضا میں پھیل چکے تھے، اس لیے جب وہ مصر میں داخل ہوا تو اسے غیر معمولی توجہ اور پذیرائی ملی، مگر یہ قیام زیادہ پرسکون ثابت نہ ہوا۔ اس نے مصر میں قریب 3 برس گزارے۔ اسی دوران فاطمی خلافت کے طاقتور سپہ سالار بدر الجمالی اس کے سخت مخالف بن گئے، اور بالآخر حسن کو قید کر دیا گیا۔ اتفاقیہ طور پر قید خانے کی ایک بلند مینار گر پڑی، جسے عوام نے حسن کی کرامت قرار دیا،
चुनाचे इसी तासुर के तहत उसे इज्जत के साथ रहा कर दिया गया। इस वाक़े ने हसन के एतमाद और ज़हनी मजबूती में मज़ीद इजाफा कर दिया। रिहाई के बाद वो मिस्र से निकलकर मुख्तलिफ इलाकों में घूमता रहा और खामोशी से इस्माइली तालीमात को फैलाता रहा। इन्हीं मुसलसल सफ़रों के दौरान उसकी नज़र ईरान के शुमाली खित्ते दैलमान पर जा ठहरी, जहां अलबुर्स के बुलंद और बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान एक नाकाबिल रसाई किला वाक़ था। यही मकाम उसके मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए निहायत मौजू साबित हुआ। ये था किला अलमौत, जो आगे चलकर तारीख के खौफनाक तरीन मराकज़ में शुमार होने लगा। आम तौर पर नाम सुनकर गुमान होता है कि अलमौत का ताल्लुक मौत से है, मगर हकीकत यह है कि यह लफ्ज़ मकामी ज़बान के दो अज्जा उलूह और आमूद से मिलकर बना है, जहां आमूद का मतलब फ़ारसी में सिखाया हुआ या तरबियत याफ्ता है। रिवायत के मुताबिक इस इलाके का एक हुक्मरान शिकार के दौरान एक पहाड़ी पर उकाब को उतरते देखकर चूक उठा और उसे अंदाज़ा हुआ कि ये जगह कुदरती तौर पर दिफा के लिए मिसाली है। इसी ख्याल के तहत यहाँ किला तामीर हुआ और उसे अलमौत यानी उकाब का सिखाया हुआ मकाम कहा जाने लगा। सल्जूकी दौर के मशहूर मौर्रिख अता मलिक जुवैनी अपनी तसनीफ तारीख़ जहानगुशा में लिखते हैं कि किला अलमौत एक ऐसी पहाड़ी पर कायम है जो घुटनों के बल बैठे हुए ऊंट से मुशाबा दिखाई देती है। इसके चारों तरफ गहरी खाइयां हैं और अंदर जाने का सिर्फ एक तंग रास्ता है, जिसका दिफा निहायत आसान था। जब हसन वहां पहुंचा तो उसने फौरन किले के गिरदोनवा में तबलीग शुरू कर दी। इसका पैगाम इस तेजी से फैला कि किले के अंदर ही उसके मानने वालों की अक्सरियत बन गई। यहां तक कि उस वक्त के मालिक अलवी मेहदी के पास इसके सिवा कोई रास्ता न बचा कि वो किले का इख्तियार हसन के हवाले करके खामोशी से वहां से चला जाए। ये वाक़या सन 1009 में पेश आया और यूं किला अलमौत हसन बिन सब्बाह के हाथ आते ही उसने उसे अपना मुस्तकिल मरकज़ बना लिया और इसी मकाम से इर्द गिर्द के पहाड़ी इलाकों में अपने असर और रसूख को फैलाना शुरू कर दिया। हसन अपने दायरा असर को मज़ीद वसी करना चाहता था और उसे खुद भी हैरत हुई कि बहुत कम अरसे में अतराफ के कई किले उसके ज़ेरे नगी आते चले गए। कुछ किले उसने कीमत अदा करके हासिल किए, कुछ ताकत के जोर पर उसके कब्जे में आए और बाज़ मकामात ऐसे थे जहां के निगहबान उसकी दावत से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने बगैर किसी मुज़ाहमत के दरवाजे खोल दिए। मुख्तसर ये कि चंद ही बरसों में रूदबार और मुल्हका खित्तों के बेशतर हिस्सों पर हसन की गिरफ्त मजबूत हो चुकी थी। वो अपना नज़रिया इस कदर चाबुकदस्ती से फैलाता था कि सुनने वाले उसके सहर में गिरफ्तार हो जाते। उसके मानने वालों की अकीदत का ये आलम था कि किला अलमौत में दाखिल होने के बाद हसन 35 बरस तक इस किले से बाहर न निकला, बल्कि रिवायत के मुताबिक वो अपने घर से भी सिर्फ 2 मरतबा ही बाहर आया। मौर्रिख रशीदुद्दीन हमदानी अपनी तसनीफ जामे-उत-तवारीख में लिखते हैं कि हसन अपनी वफ़ात तक उसी घर में मुकीम रहा, जहां वो अपना वक्त लिखने, पढ़ने, दावत के फैलाव और अपनी तहरीक की तंजीम में सिर्फ करता रहा। हसन बिन सब्बाह 11वीं सदी ईस्वी की उन शख्सियात में शुमार होता है जो सबसे ज़्यादा पुरस्रार, पेचीदा और ख़तरनाक समझी जाती हैं। उसका नाम ऐसा था जिससे दूर दूर तक लर्ज़ा तारी हो जाता। उसकी जमात और उसके पैरोकारों ने ऐसा मुनज़्ज़म जाल कायम कर रखा था जो आज के दौर की शिद्दत पसंद तंजीमों से भी कहीं ज़्यादा मुंज़बित और मुअस्सिर था। उस ज़माने में मुसलमान एक तरफ सलीबी जंगों में उलझे हुए थे और दूसरी जानिब मंगोल यलगार का ख़तरा मुनला रहा था, मगर हसन और उसके साथियों ने एक अलग महाज कायम कर दिया था जिसने वक्त के इस्लामी हुक्मरानों को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। बगदाद में अगरचे अब्बासी खलीफा मौजूद था, मगर अमली इक़्तिदार सल्जूक सलातीम के हाथ में था। हसन बिन सब्बाह का असर और रसूख इस हद तक बढ़ चुका था कि सुल्तान मलिक शाह ने उसके खिलाफ फौजी इक़दाम का फैसला कर लिया। कार्रवाई से पहले निज़ामुल मुल्क की जानिब से हसन को पैगाम भिजवाया गया कि वो किला अलमौत सल्तनत के हवाले कर दे और अपनी सरगर्मियां ख़त्म कर दे, वरना किले पर चढ़ाई की जाएगी। जब ये पैगाम किला अलमौत में हसन के सामने पढ़कर सुनाया गया तो उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि मैं किसी से दुश्मनी का ख्वाह नहीं, और निज़ामुल मुल्क से कहना कि बचपन की निस्बत के बायस मैं उन्हें नसीहत करता हूं कि इस तरफ आने का इरादा ना करें, वरना उनकी फौज का अंजाम निहायत हौलनाक होगा। जब एलची ये जवाब लेकर वापस जाने लगा तो हसन ने उसे रोक लिया और कहा, जरा ठहरो ताकि तुम्हें मेरी बात का यकीन हो जाए।
मैं तुम्हें अभी कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जो तुमने पहले कभी न देखा हो। फिर हसन बिन सब्बाह ने इशारा किया और चंद फिदाइयों को तरतीब से सामने खड़ा कर दिया। एक को बुलाया, खंजर उसके हाथ में दिया और हुक्म सुनाया कि उसे अपने सीने में पैवस्त कर लो। वो बुलंद आवाज में नारा लगाते हुए आगे बढ़ा और लम्हा भर में अपनी जान कुर्बान कर दी। उसके बाद दूसरे फिदाई को बुलाया गया और कहा गया कि बुलंदी से सर के बल कूद जाओ। वो खामोशी से छत तक गया और नीचे गिरकर जान दे बैठा। फिर एक और को पानी में उतरने का हुक्म हुआ और उसने तेज मौजों के सुपुर्द होकर दम तोड़ दिया। जब ये सब मंजर सफीर ने वापस जाकर सुल्तान मलिक शाह और निजामुल मुल्क को सुनाया तो दोनों पर सख्ता तारी हो गया। खौफ और हैरत ने अक्ल पर पर्दा डाल दिया। निजामुल मुल्क ने फौरन लश्करकशी का मशवरा दिया और सुल्तान ने ताखीर किए बगैर फौज किला अल मौत की तरफ रवाना कर दी। उधर हसन बिन सब्बाह को खबर पहुंची तो उसने हौलनाक मुस्कुराहट के साथ बस एक जुमला कहा कि निजामुल मुल्क को खत्म कर दो। यही कहना था कि चंद ही दिनों में निजामुल मुल्क कत्ल हो गया और यूं ये हसन बिन सब्बाह की मुहिम का पहला बड़ा वार साबित हुआ। किला अल मौत 7,000 फुट की बुलंदी पर कायम था और नाकाबिल फतह समझा जाता था। दूसरी जानिब आसपास के इलाकों में मौजूद मानने वालों ने सल्जूक लश्कर पर मुसलसल शबखून मारे, रसद काट दी, रास्ते गैर महफूज बना दिए, यहां तक कि 4 माह बाद वो अजीम लश्कर बगैर लड़े वापस लौट गया। निजामुल मुल्क के बाद फिदाइयों ने सुल्तान मलिक शाह को भी निशाना बनाया। ये कत्ल का अंदाज बज़ाहिर सादा मगर हद दर्जा मौस्सिर था। फिदाई किसी न किसी हीले से हदफ तक पहुंचता, वार करता, नारा बुलंद करता और फिर खुद भी जान दे देता। इसी तरीके से हसन बिन सब्बाह ने नामवर शख्सियात और बड़े उलमा को रास्ते से हटवाया। निजामुल मुल्क बाद महमूद सानी ने सल्जूक इक़्तिदार संभाला। उसने भी इस फितने को ख़त्म करने की बारहा कोशिश की मगर कामयाबी ना मिली। उसके बाद बड़े बड़े हुक्मरानों और फिर अहमद सिंजर ने मुनज़्ज़म फौजी दस्ते भेजे। कभी वो फिदाइयों के हाथों मारे गए और कभी रिश्वत के जाल में फंस गए। वक्त के साथ ये फिदाई बाकायदा तरबियत याफ्ता कातिल बन चुके थे। उन्होंने अजीम मुसलमान फरमारवा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर भी कई बार हमले किए मगर वो हर मर्तबा बच निकले। उन्हीं खतरात से निमटने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बिलाखिर हसन बिन सब्बाह की तरफ मुफाहमत और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हसन बिन सब्बाह बखूबी जानता था कि उसके पैरोकारों की तादाद खा कितनी ही क्यों न हो, वो खुले मैदान में ताकतवर सलातीन और मुनज़्ज़म अफ़वाज का सामना नहीं कर सकते। इसीलिए उसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ हिकमत अमली इख्तियार की। हजारों सिपाहियों को जंग में झोंकने के बजाय उसने ये रास्ता चुना कि चंद मुंतखब जान निसारों को सख्त तरबियत देकर उन्हें मखसूस अहदाफ के पीछे लगा दिया जाए ताकि एक ही वार में किसी खतरनाक शख्सियत, हाकिम या सिपहसालार को रास्ते से हटा दिया जाए। ये तरीका गैर मामूली तौर पर मौसर साबित हुआ और जल्द ही हुक्मरानों, शहजादों, गवर्नरों, जर्नैलों और नामवर उलमा के नाम उसके हदफ की फहरिस्त में शामिल होने लगे। फिदाई अक्सर औकात लोगों के बीचों बीच अपनी कार्रवाइयां अंजाम देते थे। उनका बुनियादी हथियार एक तेज धार खंजर होता था। बाज मौके पर कत्ल के बजाय सिर्फ धमकी देना मकसूद होता तो वो खंजर हदफ के सिरहाने रखते थे और यूं बगैर खून बहाए मकसद हासिल कर लिया जाता। ऐसी ही एक अलामती धमकी सुल्तान अहमद सिंजर तक भी पहुंची, जिसके बाद वो भी मजबूरा मुफाहमत और दोस्ती की राह इख्तियार करने पर आमादा हो गए। इन हमलों के नतीजे में बड़े बड़े अफराद अजनबियों से मिलने से घबराने लगे। बाज ने एहतियातन जर्रा बख्तर पहनना शुरू कर दिया मगर इसके बावजूद कोई खुद को महफूज महसूस नहीं करता था, क्योंकि फिदाई किसी भी भेस में, किसी भी सूरत में अपने हदफ के करीब पहुंचने का हुनर रखते थे। वो महीनों बल्कि कभी बरसों तक अपने मतलूबा शख्स के आसपास रहते, उसकी खिदमत करते, एतमाद जीतते और फिर एक लम्हे में अपना काम मुकम्मल कर देते। अब आते हैं उस जन्नत के तसव्वुर की तरफ जिसके वादे पर हसन बिन सब्बाह अपने फिदाइयों से जानलेवा काम करवाता था। रिवायतों में आता है कि किला अल मौत में उसने शानदार बागात बनवाए, जहां आसाइशें, सरसब्ज मनाजिर और दिल फरेब माहौल मौजूद था। कहा जाता है कि वहां निहायत खूबसूरत लड़कियां रहती थीं और ख़ास कारिंदे कम उम्र लड़कों को हशीश के नशे के जरिए उस जगह तक लाते थे। उस नशे की कैफियत में इंसान नीम बेहोशी की हालत में चला जाता
اور جب اسے اس مصنوعی جنت کے مناظر دکھائے جاتے تو وہ پوری طرح مسحور ہو جاتا۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ لائے جانے والے زیادہ تر لڑکے 12 سے 17 برس کی عمر کے ہوتے، جن پر نشے کے ساتھ ساتھ ذہنی اثر پذیری اور تلقین کے طریقے بھی آزمائے جاتے، جن میں حسن بن صباح کو خاص مہارت حاصل تھی۔ جب یہ لڑکے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے تو ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی کہ یہی اصل جنت ہے اور اس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ پھر انہیں دوبارہ نشے کی حالت میں باغ میں پہنچایا جاتا اور ہوش میں آنے پر وہ یہی سمجھتے کہ وہ واقعی جنت کے اندر ہیں، اور اسی یقین کے سہارے وہ ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ باغ میں موجود حسین لڑکیاں ان نوجوانوں کو دل فریب قصے سنا کر ایک خیالی دنیا میں مبتلا رکھتی، پھر نیم بے ہوشی کی حالت میں انہیں اس مقام سے باہر منتقل کر دیا جاتا۔ ان فدائیوں کی اصل ذمہ داری یہ تھی کہ حسن بن صباح کو جن شخصیات سے خطرہ محسوس ہوتا انہیں راستے سے ہٹا دیں۔ جب بھی کسی ہدف کا فیصلہ ہوتا تو حسن کسی ایک فدائی کو دوبارہ اس مبینہ جنت کی سیر کا وعدہ دیتا اور یہ یقین دہانی بھی کراتا کہ اگر وہ اس کارروائی میں مارا گیا تب بھی اسے ہمیشہ کی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ جنت کے لالچ اور نشے کی کیفیت میں یہ نوجوان ناممکن کو ممکن کر دکھاتے۔ اسی سبب حشیش کے استعمال سے یہ لوگ حشاشین کہلائے، اور یہی لفظ آگے چل کر یورپی زبانوں میں اسیسن یعنی قاتل کی صورت اختیار کر گیا۔ ان فدائیوں کو مجاہد کہا جاتا اور ان کی خون ریز سرگرمیوں کو جہاد کا نام دیا جاتا۔ مگر یہاں ایک بنیادی نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ ہلاکو خان کے عہد کے درباری مورخ عطا ملک جوینی، جو حسن بن صباح اور اس کے پیروکاروں کے شدید ناقد تھے، اپنی تصنیف تاریخ جہان گشا میں حسن کی زندگی، اس کے نظریات، قلعہ الموت کی تاریخ، تعمیر اور حتیٰ کہ اپنے ذاتی دورے کی تفصیل بیان کرتے ہیں، مگر کہیں بھی اس جنتی باغ کا ذکر نہیں ملتا۔ اسی طرح ایک اور معتبر مورخ رشید الدین ہمدانی کی جامع التواریخ میں بھی اس قصے کی کوئی صریح شہادت موجود نہیں۔ یہ روایت بعد کے یورپی مصنفین کے ہاں ابھری، جنہوں نے اسے سیاح مارکو پولو سے منسوب حکایات کی بنیاد پر پھیلایا۔ بعض محققین کے نزدیک یہ داستان اسماعیلیوں کو بدنام کرنے کے لیے گھڑی گئی، جبکہ کچھ اسے جزوی حقیقت پر مبنی سمجھتے ہیں۔ اب اس پہلو پر غور کیجیے کہ وہ شخص جو دنیا کے بادشاہوں اور امراء کو مروا سکتا تھا، اس نے اپنے ہی بیٹوں کو کیوں سزا دی؟ حسن بن صباح کا یقین تھا کہ نظم و ضبط اور بیلاگ سختی ہی اس کی تحریک کی بقا کی ضمانت ہے۔ اس نے واضح قوانین مقرر کر رکھے تھے کہ اس کے بیٹے نہ شراب نوشی کریں گے اور نہ اس کی اجازت کے بغیر کسی پر ہاتھ اٹھائیں گے۔ جب یہ شکایت اس تک پہنچی کہ ان اصولوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس نے ذاتی رشتوں کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی معاف نہ کیا۔ ایک بیٹے کو شراب نوشی کے جرم میں اور دوسرے کو قتل کے الزام پر حسن بن صباح نے اپنی ہی آنکھوں کے سامنے سزائے موت دلوائی۔ یہ واقعہ اس حقیقت کی واضح دلیل ہے کہ وہ کس قدر سخت گیر اور بے رحم مزاج انسان تھا۔ اس نے اپنی اولاد تک کو اپنے اصولوں پر قربان کر دیا۔ بعض مورخین کے مطابق اس اقدام کا مقصد اپنے پیروکاروں کے دلوں میں خوف اور مکمل اطاعت بٹھانا تھا، تاکہ کوئی اس کے احکامات سے سرتابی کی جرائت نہ کرے۔ حسن بن صباح کا انتقال 12 جون 1124 عیسوی کو ہوا۔ اس نے تقریباً 70 برس کی عمر پائی، جن میں سے 35 سال اس نے قلعہ الموت میں گزارے اور وہیں اس کی موت واقع ہوئی۔ اپنی زندگی میں دونوں بیٹوں کی ہلاکت کے بعد اس نے ایک وفادار دائی، بزرگ امید کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس کے بعد اس کے جانشین قلعہ الموت پر قابض رہے اور یہ سلسلہ 1256 تک قائم رہا، یہاں تک کہ منگول فرمانروا ہلاکو خان نے قلعہ الموت کو تباہ کر کے اسماعیلی ریاست کا خاتمہ کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ ہلاکو خان نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ روایت یہ ملتی ہے کہ منگول سلطنت کے خان اعظم منگو خان پر حملے کے لیے ایک فدائی بھیجا گیا تھا جو پکڑا گیا۔ اس واقعے نے منگو خان کو شدید غضبناک کر دیا اور اس نے حسن بن صباح کے سلسلے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اپنے بھائی ہلاکو خان کو روانہ کیا۔ ہلاکو خان نے اس قلعے کا محاصرہ کیا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، اور بالآخر حسن بن صباح کے آخری جانشین رکن الدین خورشاہ کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد رکن الدین، اس کے بچوں اور ہزاروں پیروکاروں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی نہ بخشا گیا۔ اس حملے کے وقت قلعہ الموت میں ایک عظیم کتب خانہ موجود تھا، جس میں ہزاروں نایاب کتابیں، مخطوطات اور علمی خزانے محفوظ تھے۔ ہلاکو خان کے حکم پر یہ لائبریری بھی جلا دی گئی،
जिसके नतीजे में बेशुमार तारीखी और इल्मी सरमाया हमेशा के लिए ज़ाया हो गया। सिर्फ चंद किताबें वो थीं जो बाज़ उलमा की कोशिशों से बच सकें। आज किलाए मौत के खंडरात ईरान में मौजूद हैं, जो कभी ताकत और दहशत की अलामत था, और अब इंसानी तारीख के एक अफसोसनाक बाब पर खामोश नोहा पड़ते दिखाई देते हैं। हसन बिन सबाह की मौत के बाद उसकी कायम करदा तहरीक एकदम ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उसके जानशीनों ने इसी सख्त नज़्म-ज़ब्त, खुफिया मनसूबाबंदी और फ़िदाई निज़ाम के तहत किलाए मौत और इससे वाबस्ता किलों को संभाले रखा। बुजुर्ग उम्मीद के बाद एक जानशीन आते रहे। हर जानशीन ने खुद को रूहानी पेशवा और मुतलक हाकिम के तौर पर मनवाया। इस्माइली रियासत अगरचे रकबे में छोटी थी, मगर उसकी नफसियाती ताकत बहुत बड़ी थी। आसपास की सल्तनतें उसके नाम से खौफजदा रहती थीं। हुक्मरान अपने महल्लात में भी खुद को गैर महफूज समझते थे। वुज़रा, काजी और सिपह सालार हमेशा ये अंदेशा रखते कि कहीं कोई फिदाई खादिम, सिपाही या दरवेश के रूप में उनका करीब ना आ जाए। इस खौफ ने सियासी फैसलों पर गहरा असर डाला। कई मौक़े पर सिर्फ एक धमकी, एक खंजर या एक पैगाम ही पूरे लश्कर को रोक देने के लिए काफ़ी होता था। वक्त के साथ इस तहरीक की शिद्दत में कमी ज़रूर आई, मगर उसका खौफ बाकी रहा। यहाँ तक कि 13वीं सदी में मंगोल ताकत एक तूफान की तरह मशरक से उठी और हर मजबूत सल्तनत को रोंदती चली गई। जब मंगोलों ने ईरान का रुख किया तो इस्माइली किले भी उनकी नज़र में आए। हलाको खान एक अमली जहन रखने वाला और बेरहम जर्नैल था। उसने जान लिया था कि किलाए अल-मौत जैसे मराकज़ सिर्फ फौजी ताकत से नहीं, बल्कि खौफ की अलामत बनकर जिंदा है। इसलिए उसने फैसला किया कि इस अलामत को मुकम्मल तौर पर मिटा देना ज़रूरी है। मुहासरे के दौरान मंगोलों ने वो हिकमत अमली अपनाई जो इस्माइलियों के लिए नई थी, यानी तवील मुहासरा, रसद की मुकम्मल नाकाबंदी और नफसियाती दबाव। आखिरकार रुकनुद्दीन खुरशा ने मुजाहिमत बेसूद जानकर हथियार डाल दिए, मगर इसके बावजूद मंगोलों ने कोई रहम ना किया। किलों को एक एक करके मुनहदिम किया गया, फिदाई निज़ाम को जड़ से उखाड़ दिया गया। इस्माइली ताकत का मरकज़ ख़त्म हो गया। हसन बिन सब्बाह की कायम करदा वो रियासत जो कभी बादशाहों को लर्जा देती थी, चंद बरसों में तारीख का हिस्सा बन गई। मगर इसके बावजूद हसन बिन सब्बाह का नाम ख़त्म न हो सका। बाद की सदियों में इसकी शख्सियत अफसानों, कहानियों और मुबालगा आमेज़ रिवायात में ढलती चली गई। मग़रबी दुनिया में वो एक पुरअसरार कातिलों के सरदार के तौर पर मशहूर हुआ। मुशरक में वो फितना, अक्ल शैतानी और सख्त गीर नज़म की अलामत समझा गया। आज मुवर्रिखीन इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हसन बिन सब्बाह न सिर्फ एक शिद्दत पसंद रहनुमा था, बल्कि एक गैर मामूली मुंतज़िम, नफ्सियात का माहिर और अपने वक्त की सियासत को गहराई से समझने वाला शख्स भी था। इसकी कहानी हमें ये सबक देती है कि नज़रिया अगर अंधी इताअत, खौफ और धोखे के साथ जुड़ जाए तो वो इल्म और ज़हानत के बावजूद इंसानियत के लिए किस कदर तबाहकुन साबित हो सकता है। और यही वजह है कि किलाए मौत के खामोश खंडरात आज भी सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि एक खतरनाक सोच की यादगार बनकर खड़े हैं। प्यारे दोस्तों, हसन बिन सब्बाह की दास्तान हमें गहरे और तल्ख सबक देती है। ये हमें समझाती है कि जब एक गैर मामूली ज़हानत रखने वाला इंसान गलत समत इख्तियार कर ले तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाता है। ये कहानी वाज़े करती है कि नफसियाती जंग, खौफ और दहशत किस कदर तबाहकुन हथियार हो सकते हैं। हसन बिन सब्बाह ने अपनी फ़िक्री और तंजीमी सलाहियतों को तामीर के बजाय बर्बादी के लिए इस्तेमाल किया। उसने कमसन नौजवानों को गुमराह किया, उन्हें नशे का आदी बनाया, उनके जहनों में झूठी जन्नत के ख्वाब बसाए और फिर उन्हें कत्ल खूनरेज़ी के लिए इस्तेमाल किया। उसने इल्म को फितना, ईमान को हथियार और मोहब्बत को नफ़रत में बदल दिया। आज भी दुनिया में ऐसी जमातें मौजूद हैं जो इसी रास्ते पर चलती दिखाई देती हैं, जो नौजवानों के जज्बात से खेलती हैं, उन्हें झूठे वादों में उलझाती हैं और आखिरकार तबाही के दहाने पर ला खड़ा करती हैं। ये दास्तान हमें खबरदार करती है कि ऐसे फितनों से खुद भी बचें और अपनी आने वाली नस्लों को भी महफूज रखें। तारीख में हसन बिन सब्बाह का नाम सियाहबाब की सूरत महफूज है, और ये नाम हमेशा खौफ, दहशत और गुमराही की अलामत के तौर पर याद रखा जाएगा। किलाए मौत के वीरान खंडरात आज भी गवाह हैं कि जो रास्ता तबाही की तरफ जाता है, उसका अंजाम भी तबाही ही होता है। हसन बिन सब्बाह की तहरीक ने
मुस्लिम दुनिया के फिक्री और इल्मी वजूद पर गहरे जख्म लगाए। इसके फिदाइयों ने सिर्फ सियासी रहनुमाओं ही नहीं बल्कि अजीम उलमा और मुफक्किरीन को भी निशाना बनाया, जिससे इल्म व तहजीब को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। कितने ही ऐसे अजहान थे जो इंसानियत के लिए रोशनी बन सकते थे, मगर वो इस अंधी तहरीक की भेंट चढ़ गए। ये सोचकर दिल लरस जाता है कि एक फर्द ने किस तरह पूरी तहजीब को हिलाकर रख दिया। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के फितने और गुमराही से महफूज रखे, हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हमारे नौजवानों को हर तरह की फिक्री लग़ज़िश से बचाए। अल्लाह हमें इल्म को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करने की समझ अता फरमाए और हमें उन राहों से दूर रखे जो अंजाम-ए-कार तबाही की तरफ ले जाती हैं। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये दास्तान आपको कैसी लगी और आइंदा आप किस तारीख़ी शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।